আজকের চ্যাপ্টার হচ্ছে ইনকাম which do not part of total income। এটাকে আমরা অন্যভাবে বলি exempted income, ठीक है। तो यानी जिस इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता है, যে ইনকামের ট্যাক্সের উপরে ছাড় আছে তাকে exempted income বলা হয়, ঠিক আছে। তো হচ্ছে কোন সেকশন এটা ডিল করছে, তো সে কোশ্চেনে প্রথমে আসবে নেম দ্য সেকশন ইন which incomes are exempted। তো সেকশন 10 এর মধ্যে যত exempted income আছে সব সেকশন 10 এর মধ্যে পড়ে, ঠিক আছে। তো সেকশন 10 is the section of exempted income, clear। next, section 10 of the Income Tax Act 1961 deals with the exempted income। exempted income means those income which do not part of total income, মানে যে ইনকাম টোটাল ইনকামে পার্ট হয় না, যাকে আমরা ক্যালকুলেশনে টোটাল ইনকামের সাথে রাখি না, তাকে এক্সেম্পটেড ইনকাম বলা হয়, ঠিক আছে। তো তাহলে বলবেন ড্যাশ ইজ দ্য ইনকাম which are not part the total income, তাহলে आंसर হবে এক্সেম্পটেড ইনকাম। এবার তোমাদের দেখো এক্সেম্পটেড ইনকাম অনেক কটা হয়, কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে অনুযায়ী যে এক্সেম্পটেড ইনকাম গুলো আছে সেটা নিয়ে আমরা ডিল করব। প্রথমে হচ্ছে সেকশন 10 সাবসেকশন। দেখো যত এক্সেম্পটেড ইনকাম আছে সব সেকশন 10 এর মধ্যেই পড়ে। তো সেকশন 10 সাবসেকশন 1 এগ্রিকালচার ইনকাম, এটা তোমাদের সেমিস্টার 2 তে আছে, ঠিক আছে। তো সেমিস্টার 2 তে এগ্রিকালচার ইনকাম দেওয়া আছে, এইজন্য তোমাদের লিস্টে, তোমাদের বইতে যদি লিস্ট দেখো ওর মধ্যে সেকশন 10 সাবসেকশন 1 নেই, ঠিক আছে। তো ছবিতে তোমাদের যেটা গেছে ওতে 2 থেকে স্টার্ট হয়েছে। সেকশন 10 সাবসেকশন 1 কি হচ্ছে এগ্রিকালচার ইনকাম। ইন্ডিয়ার মধ্যে এগ্রিকালচার ইনকাম এক্সেম্পটেড হয়, ঠিক আছে। তো এটা কনস্টিটিউশনে দেওয়া আছে, এটা আমাদের সেমিস্টার 2 তে আছে, এইজন্য আমি ডিসকাস পরে করব। কিন্তু সেকশন 10 সাবসেকশন 1 কিসের ইনকাম হয়, ইনকাম এগ্রিকালচার ইনকাম ইন ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। তো তাহলে এর জায়গা আমি এর 2 এর আরেকটা পার্ট আছে সেকশন 10 সাবসেকশন 2a, ঠিক আছে। তো এটাও তখন বিষয় পার্টনার শেয়ার, এটা তোমাদের আছে পার্টনার শেয়ার ইন আ ফার্ম। চলো তো দেখো সেকশন 10 সাবসেকশন 1 এগ্রিকালচার ইনকাম, সেকশন 10 সাবসেকশন 2 রিসিভ বাই আ মেম্বার ফ্রম HUF। HUF আমরা ডিসকাস করেছিলাম পার্সনের ক্যাটাগরিতে। পার্সনের ক্যাটাগরিতে যখন আমি পার্সন করেছিলাম তখনই আমরা পড়েছিলাম কি HUF। HUF মানে হচ্ছে হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি। হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলির মধ্যে কি হয় কি পুরো ফ্যামিলির যত ইনকাম আছে না, সে কর্তা, যে হেড অফ দি ফ্যামিলি হয়, সে মানে পুরো ফ্যামিলির ইনকামের উপরে ট্যাক্স ওর নামে মানে কি ইম্পোজ হয়, ঠিক আছে। তো তাহলে এইদিকে বলেছে মেম্বার অফ HUF, মেম্বাররা আলাদা করে। এবার ভাবো আমার ইনকাম হয়েছে, সাপোজ একটা এক্সাম্পল, মিস্টার অজয় ইজ আ মেম্বার অফ আ HUF। হি হ্যাজ আ পার্সোনাল ইনকাম 90,000 ডিউরিং প্রিভিয়াস ইয়ার। As a member of HUF, he received 25,000 being his salary, a share in a HUF। ताकि 90,000 उसका पर्सनल इनकम हुआ और 25,000 फैमिली बिजनेस से उसको इनकम मिल रहा है, ठीक है। तो this 25,000 is exempted। 90,000 पर्सनल इनकम पे टैक्सेबल হবে, কিন্তু এই যে 25,000 এর শেয়ার অফ HUF পেয়েছে ও, সেটা এক্সেম্পটেড হবে। কেন এক্সেম্পটেড ইনকামে ভাবো আমি কর্তা আছি, তো আমাদের ইনকাম ফ্যামিলি ইনকাম 1 লাখ টাকা হচ্ছে, এই 1 লাখের উপরে আমি ট্যাক্স পে করব, ঠিক আছে। তো এবার 1 লাখের উপরে পেমেন্ট করে 80,000 হইলো, চারটে মেম্বার আছে, চারটে মেম্বারকে 20 দিলাম সাপোজ। তাহলে এই যে 20,000 আমার মেম্বার পেয়েছে, সে তো অলরেডি মানে ট্যাক্স পেমেন্ট করার পরে যে শেয়ার হচ্ছে তার উপরে টাকাটা পাওয়া হয়েছে। मेरा फैमिली का बिजनेस का इनकम 1 लाख रुपया है। 1 लाख के ऊपर सोचो 20,000 टैक्स देती, बचा कितना 80,000। 80,000 में मेरा 4 मेंबर है सपोज, तो अब चारों मेंबर को 20 दिए। अब ये जो टैक्स का ये जो शेयर मिला है उसको, उसमें तो ऑलरेडी टैक्स को माइनस करने के बाद जो पैसा बचा उसके ऊपर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर उस पे फिर टैक्स लगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना, इसलिए इसको एग्जेम्प्टेड कहते हैं। देखो एग्जेम्प्टेड माना एकदम नहीं सोचना कि टैक्स कभी चार्ज हुआ ही नहीं होगा, कभी डबल टैक्सेशन से बचाने के लिए इसको हम लोग एग्जेम्प्टेड इनकम कैटेगरी में लगते हैं। जैसे देखो, जैसे 1 लाख वाला में ऑलरेडी टैक्स 20,000 कट चुका है। अब जो पैसा मिला मेंबर ऑफ HUF, टैक्स कौन दे देता था, कॉर्ता, हेड ऑफ द फैमिली, बिजनेस जिसके नाम पे बिजनेस के जो संभालने वाला है,
उस वो टैक्स पे कर चुका है। अब जो शेयर मिला है वो ऑलरेडी टैक्स पेमेंट के बाद वाला पोर्शन का मिला है, इसलिए डबल टैक्सेशन ना हो, इसीलिए रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ एचयूएफ इज एक्सेप्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्टेड होता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में शेयर ऑफ अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, मेंबर ऑफ एचयूएफ, ठीक है। तो थर्ड है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है पार्टनर शेयर इन अ ফার্ম, ফার্ম পার্টনারশিপ ফার্মকে বলা হয়, এটাও সিমিলার আছে এইচইউএফ এর যেমন, ঠিক আছে। তো কি করে যেমনি এইচইউএফ এর মধ্যে কি হচ্ছে কি কর্তার এইচইউএফ একটা বিজনেস, পার্টনারশিপ ফার্মও একটা বিজনেস, এইচইউএফ এর বাড়ির লোক মিলে বিজনেসটা করছে, ফ্যামিলি মেম্বারস আর দি পার্টনার, এইদিকে বাইরের লোক যে তিনজন বন্ধু মিলে বা তিনটে পার্টনার মিলে যে বিজনেসটা করছে, সেই বিজনেসের উপরে বিজনেসের প্রফিট হচ্ছে ভাবো সাপোজ 5 লাখ টাকা, তার উপরে বিজনেসের নামে তো ট্যাক্স কেটে গেছে 4.5 লাখ টাকা, ভাবো 1 লাখ টাকা ট্যাক্স দেওয়ার পরে 4 লাখ রয়ে গেল, তিন চারটে বন্ধু মিলে বিজনেস করলো, তাহলে 1 লাখ করে ইকুয়াল পার্টনার আছে, তো সাপোজ 1 লাখ করে পেয়েছে, তো এই 1 লাখ টাকা তো অলরেডি ট্যাক্স কাটার পরে যে টাকা হয়েছে তার উপরে সেই শেয়ারটা পাচ্ছে, তো তাহলে এবার ফের 1 লাখের উপরে আবার ট্যাক্স নিলে যদি ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট ট্যাক্স নেয় তাহলে তো ডাবল ট্যাক্সেশন হয়ে যাবে। তাই জন্য বলা হয়েছে कि पार्टनर शेयर इन अ फर्म इज एग्जेम्प्टेड, हम एग्जेम्प्टेड है याद करने बोलेंगे आराम से हो जाएगा, हम बता रहे एग्जेम्प्टेड क्यों है, क्यों एग्जेम्प्टेड किया गया है। तो पार्टनर का शेयर को एग्जेम्प्टेड इसलिए किया गया कि ऑलरेडी उसका इनकम पे पार्टनर शेयर जो होता है तुम्हारा बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स देने के बाद जो शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो होता है उसमें ऑलरेडी टैक्स माइनस हो चुका है, ठीक है। अब तुम उस पे फिर यदि टैक्स लगता तो वो डबल टैक्सेशन हो जाता है, इसलिए शेयर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज एग्जेम्प्टेड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है। फिर से मेरे साथ रिपीट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 received by a member of a HUF, section 10 subsection 2a partner share in partnership firm হয়ে গেল তিনটে। নেক্সট section 10 subsection 10d sum receive under LIC या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो देखो any sum received under the LIC including sum allocated by way of income tax बोनस ऑन सच पॉलिसी विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, माने बोनस भी मिलता है, एलआईसी का पॉलिसी में बोनस मिलता है, ठीक है। तो वो बोनस भी एग्जेम्प्टेड है, इट डज नॉट इंक्लूड द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। तो नॉर्मली इन जनरल यदि डेप्थ में नहीं जाओगे तो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ भी पैसा मिला वो एग्जेम्प्टेड है, इसका पीछे लॉजिक यही है। लाइफ इंश्योरेंस जो एलआईसी है ये क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, अपना एक्ट से बना था, याद है ना, हम लोग पब्लिक इंटरप्राइज पढ़े थे, उसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी पढ़े थे, उसमें एलआईसी हम लोग का आ गया था, आरबीआई आ गया था, एसबीआई आ गया था, ये लोग क्या है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू बना है, कहाँ पर पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया था। एलआईसी खुद गवर्नमेंट का एक बॉडी है, तो गवर्नमेंट अपना बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आदमी उसी में पैसा इन्वेस्ट करे तो आदमी को कुछ तो बेनिफिट अपॉर्चुनिटी करे कि ये बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा नहीं लगा के एलआईसी में पैसा लगाएगा, उसका पीछे कुछ तो बेनिफिट देना होगा। तो बेनिफिट ये है कि अगर तुम उस पर पैसा लगाओगे तो एक तो प्रीमियम पे तुमको डिडक्शन मिलेगा। देखो डिडक्शन और एग्जेम्पशन में डिफरेंस समझो, डिडक्शन मेरा खर्चा पे मिलता है कि हम अगर कोई खर्चा किए उसको मेरा इनकम से माइनस करने के लिए अलाउ किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। और एग्जेम्प्टेड मेरा इनकम पे मिलता है कि अगर कोई मेरा इनकम हुआ है उस पे छूट दे रहा है गवर्नमेंट, ঠিক আছে। তো ডিডাকশন খরচার জন্য হয় कि যে খরচা अलाउ है নিজের ট্যাক্সেবল ইনকাম থেকে মাইনাস করার জন্য। तो एलआईसी का अगर प्रीमियम पे की ना तो डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, तो 80C पे। और एलआईसी का अगर कुछ पैसा मिला तो एग्जेम्पशन मिला, तो डबल बेनिफिट नहीं मिल रहा है एलआईसी पे। क्यों मिला, इतना प्यार मोहब्बत क्यों है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, पब्लिक सेक्टर का ही एक पार्ट है, उसको ग्रो करने के लिए इसीलिए। फिर भी इसमें कुछ इफ एंड बट्स है। इफ एंड बट्स क्या है, बोला है कि एनी सम रिसीव अंडर 80DD सबसेक्शन 3 और 80DD3, एनी सम रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी सम रिसीव अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी issued after 1st April 2003 in respect of which premium payable of any year during the term of policy exceed 20% of actual capital of sum assured।
However, in the above cases, any sum received on the death of policy holder shall be exempted. तो ये तीन केस है जो तुम लोगों का डिग्री आएंगे 80DD3 के अंदर में, या सम रिसीव ओवर एक्सीड 20%, ठीक है, तो या की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें ये टर्म कंडीशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर डेथ हो गया तो पूरा पूरी तक कोई भी कंडीशन है, सब कोई वो वाला डेथ वाला जो पॉलिसी होल्डर का है उसमें तो एग्जम्पशन मिलना ही नहीं, ठीक है। तो तुम लोग को उतना डीपली नहीं जानना है 11th क्लास में, तुम इतना ध्यान के रखना है, ठीक है, क्योंकि टैक्स का अगर तुम यदि एग्जामिनेशन जान जाओगे तो बहुत डीप होता है, क्योंकि वो टैक्स मींस क्या होता है, इफ एंड बट्स का है। अगर इसमें किसी और सेक्शन के अंदर तुम यदि डिडक्शन ले लिए तो इस दूसरा में डिडक्शन नहीं ले सकते, उसमें अगर ये ले लिए तो फिर एग्जामिनेशन किसी और में नहीं ले सकते, ऐसे बहुत सारा इफ एंड बट्स, डायरेक्ट नहीं कुछ कहो, ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ एक ही रास्ता है। टैक्स का जब प्लानिंग होता है तो बहुत सारा रास्ता से तुम उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या तुमको इतना याद रखना है, एनी सम रिसीव, क्योंकि तुम लोग का में एमसीक्यू आएगा, उसमें सिर्फ पूछा जाएगा क्या कि सम रिसीव बाय रिसीव अंडर LIC पॉलिसी इज एग्जेम्प्टेड अंडर विच सेक्शन, तो तुमको आंसर बोलना हो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, या अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D विच इनकम इज एग्जेम्प्टेड, तब तुमको आंसर देना होगा सम रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तुम लोग जब हम लोग जब इसका क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तब तुम लोग देखना कि उसमें यही दो टाइप का कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा और डीपली नहीं जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 डेली अलाउंस ऑफ MPs एंड MLAs। MP MLA को घर में देखना, सबको वहाँ पर दिन शाम के समय दिन का समय हो जाता है, वहाँ पर चाय वगैरह वो सब पिलाया जाता है, ठीक है, तो चेयर वेयर रखा जाता है, तो बहुत सारा खर्चा होता है MP MLA का, ठीक है। तो उसके लिए अलाउंस दिया जाता है, अलाउंस में मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। तो वो वाला उन लोग का क्या है, समाज सेवा के लिए दिया गया है ना, तो ये पैसा पे टैक्स नहीं लगेगा, इसीलिए उसको डेली अलाउंस MP MLA का तुम्हारा क्या हो रहा है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो देखो, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ठीक है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर हो, ठीक है, तो इन लोगों का क्या हो रहा है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट हो रहा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 17A अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स। अवार्ड रिवॉर्ड्स, यहाँ पर अवार्ड रिवॉर्ड का कैटेगरी तुमको समझना होगा, कौन सा अवार्ड कौन सा रिवॉर्ड। बोला है एनी पेमेंट मेड इन परसुएंस ऑफ एनी अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय पब्लिक इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, ठीक है, तो जो अप्रूव्ड या कोई अदर इंस्टीट्यूशन का जो अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन लोग अवार्ड दे रहा है, तो उस अवार्ड का पैसा जो हो रहा है, मैंने सोचो कि मॉनिटरी अवार्ड्स है, वो वाला पे टैक्स नहीं। एक सोचो कि कोई वीर चक्र जीता, ठीक है, तो या किसी का पति शहीद हुआ, उसको 10 करोड़ रुपया दिया गवर्नमेंट एज अ कैलेंडरी अवार्ड दिया जाता है ना, अब वो जैसे ही मिला अब उसके बाद टैक्स लेगा तो उसको कितना दुख लगेगा, देखो मेरा पति शहीद हुआ, उसका पैसा मिला, उस पर भी टैक्स काट लिया है। तो यानी यहाँ पर कुछ सेंटिमेंटल चीज़ है ना, कुछ कुछ तो दिमाग में कि इस पे टैक्स लेंगे तो पब्लिक का सेंटिमेंट में ये वाला चीज़ को नहीं ले सकते हैं, इसीलिए अवार्ड एंड रिवॉर्ड पे तुम्हारा टैक्स नहीं लगता, ठीक है, तो उस इनकम पे। लेकिन सब अवार्ड नहीं, यहाँ पर क्या बोले हम कि एनी पेमेंट मेड इन परसेंस ऑफ एनी अवार्ड इंस्टीट्यूट इन पब्लिक इंटरेस्ट, पहले तो पब्लिक इंटरेस्ट के लेके by the central government or state government or any institute approved by central government. Any payment made by award of central government, state government for such purpose may be approved by central government in his behalf of public interest are exempted from tax. Approved awards are, क्या क्या approved award है इंडिया में, CV रमन अवार्ड इन एक्सपेरिमेंट रिसर्च इन अप्लाइड साइंस, साइंस में रिसर्च वर्क अच्छा किया उसके लिए जो अवार्ड दिया जाता है उस पर, ठीक है। तो ठीक है, मेघनाथ साहा अवार्ड फॉर रिसर्च इन अप्लाइड साइंस, सर जगदीश चंद्र बोस अवार्ड इन रिसर्च इन लाइफ साइंस, ठीक है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड है, फिर कैश रिवॉर्ड फॉर पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, नेशनल अवार्ड फॉर फिल्म, कैनेडी इंटरनेशनल अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमिक अवार्ड, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, सुकुमार बासु मेमोरियल अवार्ड एंड सो ऑन, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है, इस तरह का जो अवार्ड है जो पब्लिक इंटरेस्ट में किया, वेलफेयर के लिए कोई कुछ काम किया उसके थ्रू उसको अवार्ड मिल रहा है, तो इस तरह का अवार्ड क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। अब है कि सर तो तुम्हारा क्या नाम है, अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, 17 पढ़ लिए, 17A पढ़ लिए, तो स्टार्टिंग फिर से करते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कौन सा है, एग्रीकल्चर। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2
received by HUF. Member of HUF. Section 10 subsection 2A. Partnership in a firm. Section 10 subsection 10D. Some receipt under Some receipt under LIC, life insurance policy. Life insurance policy. Section 10 subsection 70. MP and MLA. ठीक है, तो डेली अलाउंस ऑफ एम्पियर। सेक्शन 10 सबसेक्शन 17A अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। ठीक है, क्लियर है? तो মনে রাখবে, কেন আজকেই ক্লাস, আজকেই পড়া, আজকেই শিখে যাওয়া, এই চ্যাপ্টারটা শেষ আজকেরই। ঠিক আছে? তো দেখবে তোমরা এমসিকিউ এসকিউ পুরোটা নিজে দিয়ে পড়ে নিবে। এবার দেখো, এবার হচ্ছে सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का नाम तो सुने हो, केएमसी কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত সমিতি। আমরা লোক যখন আমরা পার্সনের ক্যাটাগরি করছিলাম তখন আমরা লোকাল অথরিটি কে আমরা একটা পার্সনের ক্যাটাগরিতে রেখেছিলাম। কন্টোনমেন্ট বোর্ড, গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি, এই সব লোকাল অথরিটি যারা লোকাল লেভেলে গভর্নমেন্টে কাজ করে, তাদের ইনকাম হয়। হ্যাঁ, তারা ল্যান্ড রেভিনিউ নিচ্ছে, তারা মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্স দিচ্ছে, ওয়াটার ট্যাক্স দিচ্ছে, সিভারেজ ট্যাক্স দিচ্ছে। তো এদের অনেক ধরনের ইনকাম আছে। ঠিক আছে? তো এই ইনকামের উপরে ওদের যে ট্যাক্সটা আছে ছাড় আছে, কেন गवर्नमेंट बॉडी तो कोई बिजनेस करने वाला फॉर्म नहीं है। ठीक है? तो बोला है इनकम अंडर ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। यदि এই লোকাল অথরিটি তারা কোনো হাউস প্রপার্টির ইনকাম করছে, কোনো ক্যাপিটাল গেইন ইনকাম করছে। ক্যাপিটাল গেইন ইনকাম মানে যখন অ্যাসেট সেল করে যখন ইনকাম হয়, ট্রান্সফার করে, সেল ওয়ার্ডটা বলবো না, ট্রান্সফার করে যদি ইনকাম হয়, আর আদার সোর্সেস থ্রু ইনকাম হয়, সেইগুলো ইনকাম ফ্রম ট্রেড অর বিজনেস ক্যারিড বাই ইট হুইচ অ্যাক্রুড অর अराइज फ्रॉम सप्लाई ऑफ कमोडिटी और सर्विस विद इन अ लोकल लिमिट। लोकल लिमिट में कोई गुड्स सप्लाई कर सस्ता में, तो पंचायत का लोकल का जो ये है म्यूनिसिपैलिटी, उन लोग की तरफ से कुछ कर कभी बहुत प्राइस हाई हो जाता है, उन लोग खुद डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेस करके लोकल में लेवल में सेल करता है। उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई तो करता ही है म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू ही। ठीक है? तो फॉर दिस पर्पस द एक्सप्रेशन लोकल अथॉरिटी मींस पंचायत समिति, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है? तो इन लोग के द्वारा जो भी इनकम जनरेट होता है, ये इनकम क्या होता है? एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 10 सबसेक्शन 20। ठीक है? तो 1034 डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ठीक है? तो बोला है with effect of the assessment year 2004-5 any income by way of dividend from Indian company referred in section 115O is exempt from tax। लेकिन यहाँ पर exempted क्या बारे में? withdraw भी हो सकता है। dividend from the above nature other than those which are been paid section 115O shall not be exempted with effect of 1st April 2020। देखो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी में आंख बंद करके नहीं कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी पहले क्या था कि सब तरह का डिविडेंड एग्जेम्प्टेड था, फिर उसमें कुछ टैक्सेबिलिटी आया, क्या कुछ नियम आया, इफ एंड बट्स आया। बोला अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 BBD है, इफ इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी a specific SSC who is resident of India exceed 10 lakh during the previous year, then tax at the rate 10% plus surcharge if applicable plus health and education cess shall be payable on the amount exceeding 10 lakh. No deduction shall be allowed for any expenditure, allowance and losses for dividend for the purpose of levying such tax. Exemption withdrawn. Dividend from the above nature other than those on which tax has been paid, section 115 BBDA shall not be exempt from tax with effect of 1st April 2020। ठीक है? बोला है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर ₹26,000। Hindustan Lever Company is an Indian company, therefore dividend received from this company is exempt from tax by virtue of section 10 subsection 34। Dividend from foreign company is taxable in all cases। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी में कुछ इफ्स एंड बट्स है, लेकिन फॉरेन कंपनी में फुल्ली टैक्सेबल है। डिविडेंड कंपनी, इंडियन कंपनी अभी टैक्सेबल भी है 2020 के बाद। ठीक है? तो लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि अगर डीडीटी पेड कर ले, तो डीडीटी मतलब होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डीडीटी मींस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तब यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगा तुमको। अगर वहां पर पेमेंट नहीं है
अगर उस कंपनी का डीडीटी कंपनी तुम्हारा होके डीडीटी नहीं देता है, डीडीटी मींस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर कंपनी नहीं देता है, ठीक है, तो तब तुमको टैक्स, सीधा बात है। वहां पर क्यों ये सब एग्जेम्प्टेड हुआ था? क्योंकि कोर्टा दे दिया था टैक्स, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के नाम पे टैक्स कर दिया था। यहाँ पर भी डिविडेंड में भी सेम लॉजिक है। अगर तुम्हारा कंपनी तुम्हारा होकर, जो शेयर होल्डर का होकर डीडीटी पेड करता है, डीडीटी मींस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इन दैट केस क्या हो रहा है, इंडियन कंपनी को तुम्हारा जो डिविडेंड इंडियन कंपनी से पाए हो तुमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। बट उन लोग अगर टैक्स नहीं देता है, डीडीटी इज नॉट पेड, तब तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इंडियन कंपनी का केस में इफ एंड बट्स है। पहला क्या इफ एंड बट है? इफ डीडीटी इज पेड, इंडियन डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड। If DDT is not paid by the company, then Indian dividend from Indian company is taxable. समझ में आया? सिर्फ एक चीज आंख बंद करके नहीं पढ़ना, क्योंकि तुमको कल एग्जाम पूछा तब के बोले छे এখন तो इंडियन कंपनी तो डिविडेंड टैक्सेबल আছে, तब तुमको तो जवाब देना होगा कि देखो टैक्सेबलও আছে, এক্সেমশনও আছে। যদি কোম্পানি শেয়ার হোল্ডারে হয়ে ডিডিটি পেড করে দেয় তখন এটা এক্সেম্পটেড হয়ে যাবে। যদি কোম্পানি ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স পেমেন্ট না করে তাহলে শেয়ার হোল্ডারকে ডিভিডেंड फ्रॉम इंडियन कंपनी के टैक्सेबल के क्षेत्र में रखता हो। क्लियर है? बोल पाओगी? याद रहेगा? क्योंकि सब कोई जहां कॉन्ट्राडिक्ट वाला वहीं पर ही घुमाता है। बोले तुमको किन पढ़ाते हैं ये वाला, ये तो टैक्सेबल है, ठीक है, तो तुमको नहीं, पहले तो उन लोग ही इसको एग्जेम्प्टेड पढ़ाता, तब हम यही क्वेश्चन हम ही करते हैं, ये टैक्सेबल है, चुप हो तो क्या ना एग्जेम्प्टेड बोल चीज। इफ एंड बट, टैक्स में हमेशा इफ एंड बट क्यों होगा? इस क्या चीज होने से फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा, कौन सा कब वो नहीं होगा, दोनों जान के रखना होगा। तो इफ डीडीटी इज पेड then dividend from Indian company is exempted. If DDT is not paid, then it is taxable. Okay. फिर उसके बाद 80 DDA, सॉरी 115 BBDA का बात बोला, 10 लाख से ज्यादा इनकम, तो वो डीपली तुमको पूछेगा नहीं, लेकिन ये वाला सिंपल है, तुम्हारा 12 में बहुत काम में आएगा, कैपिटल गेन चैप्टर में, ठीक है। तो अदर सोर्सेस में भी काम में आएगा, अदर सोर्सेस में, सॉरी। फिर है सेक्शन 10 सबसेक्शन 35, इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का नाम सुने हो? तो म्यूचुअल फंड में का जो यूनिट्स होता है उस पे अगर तुम इनकम कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। और एक है मेरा वहां पर जगह नहीं था, हम उसको लिख दे रहे हैं। अच्छा, इसका पहले देख लो, सेक्शन 1020 इनकम फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, 1034 डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, 1035 इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। लाइक रेडी? एक बार रिपीट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, 10(2) member share of a member of HUF, 10(2)(a) पार्टनरशिप, ठीक है। तो 10(10)(b) some received under लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, 10(17) daily allowance of MPs and MPMLA, MLS, 10(17)(a) awards and rewards, 10(20) local authority, 10 पूरी लोकल अथॉरिटी बोलेছিলাম, ठीक है। तो 1034 इंडियन कंपनी, 1035 म्यूचुअल यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। लास्ट बचा है, देखो हम लोग सब हो गया, लास्ट एक पॉइंट पढ़ेंगे तो हम लोग उसके बाद क्वेश्चन आंसर में चले जाएंगे। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के যদি ট্রান্সফার করে যে ইনকাম জেনারেট হয় তাকে লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইন বলা হয়। শোনো এই তাহলে লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইন, if transfer of long term capital assets the income arise it comes under long term capital gain, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर ट्रांसफर करते वक्त
और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और कोई फंड है जो इक्विटी ओरिएंटेड है, इक्विटी रिलेटेड है, उस फंड को अगर तुम ट्रांसफर कर रहे हो तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 में एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा इफ एंड बट्स है जो तुम लोग का सिलेबस में उतना डीपली नहीं किया, वो कॉलेज में जब तुम लोग सेक्टर टैक्स करोगे या तुम लोग कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो ही तुमको उसको डील करना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेंसर इसमें देखेंगे। तुम लोग का बस क्वेश्चन आंसर वाला पेज गया है? नहीं नहीं गया, ठीक है। हम क्वेश्चन लिख के ही हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आप लोग समझ पाया? 1038 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ इक्विटी ऑन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड। ठीक है, हाँ देखो कंटिन्यू। अब हम क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग बताते रहना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द इनकम व्हिच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, द इनकम व्हिच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम इज कॉल्ड एग्जेम्प्टेड इनकम। ठीक है, हम तुम लोग को क्वेश्चन कर रहे, तुम लोग डायरेक्टली बोलो। ठीक है, तो सेकंड है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। देखो क्वेश्चन কি করে আসছে তোমরা দেখে নাও, তারপরে বুঝবে। Sum received under key man insurance policy is tax free, taxable, imaginary income, real income। बोलो तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ इफ एंड बट बताए थे, उसमें की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी था कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी को टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हो रहा है? टैक्सेबल। ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में देखना, हम तुम लोगों को बताए थे वीडियो में, देखना उसमें की 3 चीज बताए थे। ठीक है, तो उसमें हम बोले थे कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हुआ तो उसमें टैक्सेबल, उसमें एग्जेम्पशन नहीं है। नेक्स्ट है शेयर ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम एचयूएफ इज अनअर्न्ड इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स फ्री इनकम और इलीगल इनकम। तो पहले ऑप्शन तो सुनो, ऑप्शन नहीं सुन के आंसर मत देना। क्या होगा? अनअर्न्ड कोई इनकम ही नहीं है, टैक्सेबल है, टैक्स फ्री है या इलीगल है। इनकम फ्रॉम अ मेंबर ऑफ एचयूएफ टैक्स फ्री, टैक्स दिते হবে না। फिर शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट रिसीव बाय अ पार्टनर, एग्जेम्प्टेड नहीं देके टैक्स फ्री बोल देगा तो टैक्स फ्री में टिक करना है। Form a partnership firm is a tax free, not an income at all, taxable income, legal income। Divisible profit tax free income ना, divisible share of divisible profit in a partnership firm क्या होता है? टैक्स फ्री ना, उसमें टैक्स फ्री का दूसरा नाम एग्जेम्प्टेड। टैक्स में जिसमें टैक्स नहीं लगता, जिस वो इनकम ही नहीं है, इनकम तो है लीगल इनकम पे, लेकिन टैक्स उसमें फ्री है क्योंकि उसमें टैक्स चार्ज नहीं होता, तो वो टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम इज आल्सो कॉल्ड टैक्स फ्री इनकम। तो ऑप्शन में टैक्स फ्री दिया तो टैक्स है। व्हिच टाइप ऑफ सेपरेट स्टेटस डज अ पार्टनरशिप फर्म हैज, पार्टनरशिप फर्म में किस तरह का स्टेटस होता है? ऑप्शन 1 तुम्हारा टैक्स फ्री, ऑप्शन 2 टैक्सेबल, ऑप्शन सी तुम्हारा कैपिटल रिसीव, सॉरी कैपिटल रिसीव बोल रहे हैं, नॉट एन इनकम एट ऑल, ऑप्शन 4 लीगल इनकम। लीगल इनकम क्वेश्चन सुना है, सुनो। शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट रिसीव बाय अ पार्टनर, शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट रिसीव बाय अ पार्टनर, रिसीव बाय अ पार्टनर होने पे क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अ टैक्स फ्री इनकम। एग्जेम्प्टेड মানে কি হচ্ছে? टैक्स फ्री। कैश रिसीव फॉर पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, तुम हिंदी एग्जामिनेशन कुछ हो रहा था, उसमें तुमको कैश अमाउंट मिला है, तो तुम्हारा वो क्या होगा? ठीक है, तो बोलो ये वाला हम लोग पढ़े हैं अवार्ड और रिवॉर्ड में, उसमें हम कुछ एग्जांपल देते, उसमें हिंदी एग्जामिनेशन दिए थे, तो हिंदी एग्जामिनेशन जो होगा वो क्या होगा? टैक्स फ्री, वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। अंडर विच सेक्शन इनकम अर्न फ्रॉम यूटीआई, यूटीआई মানে হচ্ছে ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, ইউটিআই মানে ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ এক্সেম্পটেড, কোন সেকশনে এক্সেম্পটেড হয় বলো তো? আমি অপশন দিচ্ছি না, বলো না, এখন তো তোমার সব মুখস্থ ছিল, বলো
यूनिट म्यूचुअल फंड को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड एक साथ ही था। सेक्शन 2 35 34 में इंडियन कंपनी था, 35 में यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और तुम्हारा यूटीआई ये ट्रस्ट ऑफ इंडिया। Under which section long-term capital gain arises from transfer of equity shares is exempted? 6. सबसे लास्ट वाला 1038 ठीक है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 is the income in which the income which are exempted is long-term gain of transfer of equity oriented fund or equity shares. Dividend from foreign company is taxable, exempted up to 50,000 tax free, none of this Taxable. याद है ना, हर हाँ, केस में हर केस- इंडियन फॉरेन कंपनी होने पे हर केस में ही वो टैक्सेबल होगा। इंडियन कंपनी में इफ बट है। Dividend on sorry, section 10 of the income tax act deal with dash income, exempted income। अरे भाई सबका धीरे धीरे सब बोलो, तुम लोग से लास्ट में बैठ के बात किया, तुम लोग बैठ के भी कुछ नहीं बोले तो चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर तुम कंटिन्यू इसको ध्यान रखोगे। नहीं और 10-15 मिनट पढ़ने से तुमको क्या तकलीफ हो रहा पता नहीं। 15 मिनट পড়ে করবে তো फिर যাবে তোমরা ভূতনাথ যাও যেখানে যাও যাও এখন কি করে ক্লাসে যাবে? 10 মিনিট 15 মিনিট আছে এটাই তো ক্লাস তো করো। এখন কি করে যাবে? এখন একটা কোশ্চেন বলো কি স্যার ওইদিকে না একটাও ট্যাক্স হচ্ছে না আর এদিকে ট্যাক্স যেদিন স্টার্ট হচ্ছে সেদিন শেষ করার চেষ্টা করছি তখন তোমরা ওটা করতে চাইছো। ইভেন এটা নাকি তোমাদেরকে বলি কি বাড়ি থেকে মুখস্থ করো এইদিকে ভিডিওর মধ্যে চলে এলো কিন্তু আপনাকে বলছে এখন নাম নিয়ে নেক্সট টাইম নাম নিয়ে ভাইরাল হয়ে যাবে তা মায়ের নাম্বারও সেন্ড করো তারপরে স্কিপ করে ওইটাকে এরপর ব্লক করার থাকলে কি আমারই ফোন থেকে পাঠাবো। আরে অনেকগুলো নাম্বার তুই তো পুরো একটাই নম্বর আর তিনটে নম্বর তো আমি তোদেরকে দিইনি। তাই এখনো আলাদা ফোন রেখে দিয়েছে ओवर हो गया अजर निकल आया बात नहीं किया। अच्छा एक আছে কিন্তু এটা সিলেবাসে নেই सुकन्या समृद्धि अकाउंट ये नया अभी अकाउंट है ये भी एक्सेप्टेड है सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 ए में ठीक है याद रखना सुकन्या समृद्धि। अब तुम लोग ट्रू फॉल्स ठीक है whether the following statement are true or false तुम लोग बोलना ट्रू फॉल्स बोलना है। टाइम कितना हो रहा है अभी 5 मिनट 56 11 बजते तो এই ব্যাচটা আমি 11টা 8 এ ছুটি দিই 8 ঠিক তো তাহলে এখন কত মিনিট টাইম আছে অনেক 10 মিনিট যারা হেঁটে যায় তাদেরকে 11টা 15 তে ছুটি আর যারা বাইকে যায় তারা 15 আমি আছি তো আমি তোমাকে দেখছি তুমি যদি সোজা সোজি যাও কতক্ষণ লাগবে যদি কোনো কারোর কাছে বলি अच्छा सुनो देखो मेरा फोन में स्पेस इस तरह का नहीं है इसको नहीं तो हम इसको आधा टाइम डांटने में चला जाएगा। स्पेस बहुत रहता ना तो उसको तो हम ऐसा एग्जांपल बार बार उसको टोक के समझा रहे। हम चाहते हैं कि वीडियो के समय हम इज्जत से तुम लोग पढ़ाएं और तुम लोग भी इज्जत से पढ़ें लेकिन पीछे में बार बार हमको डिस्टर्ब तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग दो जन पढ़ाते वक्त कर रही हो वो तो तुम हुक्म डांट रहे हो उसके वक्त कर वो लोग दोनों भी इरिटेट कर रहे কি স্যার কোশ্চেন आंसर দিচ্ছে তাই জন্য ওদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে তোমাদের কোশ্চেন आंसर দিচ্ছে না আমরা কি আমি কিন্তু আনসার দিয়েছি এই তো স্টার্ট করছি দাঁড়াও এই পোস্ট का बटन आप देखे वो बता रहे हैं पंचायत ऑफ अ लोकल अथॉरिटी क्वेश्चनটা শেষ করো ওটাই করব আগে কাম ফ্রম पंचायत ऑफ अ लोकल अथॉरिटी इज टैक्सेबल False. আচ্ছা এবার আমি কোশ্চেনটা ঘুরিয়ে বলছি पंचायत इज अ लोकल अथॉरिटी ट्रू और फॉल्स True. डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल True. True. Foreign company. Foreign company. कंपनी
कंपनी कौन सा है? फॉरेन कंपनी। अच्छा नेक्स्ट, a partnership firm is not a separate assessable unit. Sir, CV Raman is experimental research is applied is exempted from tax. বলো প্রথমে আমি বললাম প্রথমেরটা বলো না সেপারেট, প্রথমেরটা বলো সেপারেট অ্যাসেসেবল ইউনিট, সেটা কি হবে? false ফলস। ফলস একবার false বলবে একবার true বলবে প্রথমেরটা ফলস বলছো আর সেকেন্ডেরটা ট্রু। ঠিক, সেকেন্ডেরটা ফলস, ফার্স্টেরটা ফলস, সেকেন্ডেরটা ট্রু। ওই আমি ঠিক বুঝি কেন আমরা পড়িয়েছিলাম বিজনেস স্টাডিজে কি সোল প্রপার্টনারশিপ পার্টনারশিপে দুটোর মধ্যে আনলিমিটেড লাইবিলিটি হয়, কেন এটাকে আলাদা সেপারেট ধরা হয় না, বাট কোম্পানি একটা আলাদা সেপারেট অ্যাসেসেবল ইউনিট হয়। ঠিক আছে তো? ক্লাসে আছে Income from Kolkata Municipal Corporation is taxable in full. क्या बोल रहे हैं Income from, सुन लो, income from Kolkata Municipal Corporation is taxable in full. बोलो ट्रू की फॉल्स? false तो है फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन क्या था? देखा क्वेश्चन बोलो। क्योंकि भैया वो तो मतलब लोकल लोकल अथॉरिटी में पड़ता है, एग्जेम्प्टेड इनकम में पड़ता है। लोकल अथॉरिटी का एग्जेम्प्टेड इनकम में कौन सा सेक्शन में है? पर लोकल सेक्शन 17। अरे हाँ नहीं, 17 देखो सर, लोकल अथॉरिटी 10-20 10-20 বলেছিলাম, ठीक है? बोलना तो 10-20 के अंदर में लोकल अथॉरिटी का इनकम एग्जेम्प्टेड, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो लोकल अथॉरिटी है, तो इस पे टैक्सेबल कैसे होगा? ये तो फॉल्स है। राइट तो সবাই ট্রু ট্রু করে গেলে এই তো স্যার আমি तो false बोले একবার বলিনি रीजन ना बोले बोलले কোনো लाभ नहीं। नेक्स्ट, रीजन बोले तो लोकल अच्छा लोकल अथॉरिटी का इनकम एग्जेम्प्टेड होगा, ये है रीजन। लोकल अथॉरिटी खाली बोल देने से नहीं होगा। इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ यूटीआई इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 35। ट्रू 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 आगे बोलो ट्रू 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 सर सेक्शन ऑफ 1035 में किसका सेक्शन है? देखो 1035 म्यूचुअल फंड ठीक है। तो तुम लोग का इस तरह से क्वेश्चन है, आप लोग पता एचयूएफ का सॉरी HUF and partnership firm is dash separable unit, is a separable unit, true or false? True, क्योंकि HUF और पार्टनरशिप को अलग कैलकुलेट करता तभी ना उसका मेंबर लोग को फ्री करता है टैक्स से, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, बस आज एक